are which are uh, okay, which have some physical properties like they are lustrous, they are heat conductors, lustrous, good heat conductor, electricity conductors. They are Maybelline. हाँ नहीं malleable. They are malleable, ductile. Or what are metals? सर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस अच्छा सारे बताऊं? मैं सर लस्ट्रस, सोनोरस, मैलिएबल, डक्टाइल, हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो ऑफिस तो देख के बता रहे हैं। नहीं लिखा ही नहीं है मैंने। बिल्कुल ही है। चलो ओके वर्णिका तुम बताओ। सही नहीं अलवी तुम बताओ चलो। तो मेटल्स Metals are hard are generally hard substances. They are malleable, they are ductile, they are good conductors of heat, they have high melting and boiling points, they have high heat conductivity, and they are good generally conductors of ductile. heat. हाई हीट कंडक्टिविटी नहीं बोलते। दे आर गुड कंडक्टर्स Conductors ऑफ of हीट ऐसे heat. बोलते। ठीक है At last. नहीं अलवी बताओ व्हाट आर नॉन मेटल्स। Non-metals are those substances which have properties opposite to that of metals. For example, they are not generally lustrous. They generally have low melting and boiling point. They are brittle. That is, they can be broken into pieces easily. क्यों? मतलब हाँ अच्छा अच्छा और they have metals they are not very good conductors of heat. not Generally, lustrous, not malleable, they are not generally ductile। not very good conductors of electricity. ठीक है Generally, मैंने इसलिए कहा क्योंकि there are certain Tripti, exceptions. which metals are not hard? Which metals? इसने कहा are plural are not. आप एक बार repeat कर सकते हो question? which metals are not hard? Sandal. Mercury is not hard. It is a metal. और कुछ है उसकी तरफ क्यों देख रही है वो टीचर है। नहीं नहीं मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। Mercury. That's the only। अच्छा वर्णिका को निकाल देते हैं। हाँ शौर्य metals which are not hard। सर सोडियम, पोटेशियम। और इतने ही पता है सर। मरकरी नहीं बोल सकते थे। ठीक है जी। हाँ ये भी। क्या क्या एक्सेप्शन थे एक क्वेश्चन तो रेज करने दो। Let me answer first. Are metals solid, liquid or gas? Alvi. They may be in solid state or maybe in liquid state. Metals. Name 5 metals which are found in liquid state. Five का तो पता नहीं. Mercury, gallium, cesium. तुम्हें कहना चाहिए था metals are generally hard, generally solid। फिर मैं पूछता which are the metals which are not solid। अच्छा तुमने सेकंड क्वेश्चन का सत्यानाश कर दिया मतलब पूछवा नहीं दिया। ठीक है ओके। और वो एक्सेप्शन है ना सारे जो थोड़े बहुत हैं। अच्छा तृप्ति व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स?
iron, copper. मैंने ये नहीं पूछा विच मेटल्स, इंग्लिश तो सुन लो यार. आपने What type of metals are generally used for making utensils? कैसे मेटल्स, मैंने कौन से नहीं पूछा. Um, lustrous and good heat conductor. Good heat conductor and those who are lustrous and. लस्टूरियस क्या होता है? अरे यार वो two lustrous. luscious. Let me show you wrong pronunciation से क्या होता है. Off लिखा है आपने. उससे कुछ नहीं हो रहा, सही आएगा. जरा मीनिंग पढ़ो, स्पीक नहीं करना है, बस पढ़ लेना. पढ़ लिया? No, but you're saying one. हाँ, so know what you are saying. पढ़ लिया ना? अब Luxurious आ रहा है. वो मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया. अरे वही spelling है. अब इसका प्रोनाउंसिएशन सुनो. Lustrous, Lustrous. lustrous, Good heat conductor. बोलो इसके साथ 2-3 बार. lustrous, हाँ ये lustrous, बोलो. Lustrous. हाँ, अटकना नहीं है. अगर टैप अटक गए ना तो मीनिंग बदल जाएगा. तुमने देख लिया, उसका मीनिंग भाई आता है. ठीक है ना? अटके फिर अटक रही हो, अटके बगैर बोलना है. Lustrous. स्ट्रेस. ठीक है. और मीनिंग क्या है इसका? शाइनिंग एंड सॉफ्ट. बेसिकली शाइनी, हमें शाइनी से लेना देना है, और किसी से लेना देना नहीं. और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए. एक वो अलग है. इसकी प्रोनाउंसिएशन दिखा रहा हूँ. लस्ट्रस. चाहिए कि होगा. और Lustrous हो ना हो, good heat conductor ठीक है. होना चाहिए. और तुम्हारा ना एक प्रोनाउंसिएशन पे पड़ता. वही able. अब ये हिंदी में लिखा है, अब सुनो इसका प्रोनाउंसिएशन. malleable, बोलो. Malleable. malleable, malleable. malleable, मैलिएबल. ठीक है, ई की मात्रा. मैलिएबल. ठीक है. ठीक है, याद रहेगा. याद रहेगा. ठीक है. ओके भाई, कहाँ थे हम? हाँ. वर्णिका, व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स? मेरा Next, good conductor of heat. वो बस नहीं. व्हाट टाइप So ऑफ ductile. डक्टाइल. आर यू श्योर? डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है वर्णिका? और जो हैमर करके लाइक लॉन्ग स्ट्रिप्स में हो सकता है. लॉन्ग क्या हो सकता है? लॉन्ग स्ट्रिप्स में लाइक वायर. स्ट्रिप्स. आर यू श्योर? यू आर स्पीकिंग द राइट थिंग. बहुत बढ़िया. सारा डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है? Sir, ability of a metal to turn into wires. एबिलिटी ऑफ मेटल. Ability. ऑफ मेटल. ठीक है, एबिलिटी का मतलब है वो खुद से एबल है. ठीक है, खुद से अपने आप को Sir, wire- ability. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल बिकॉज ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. ठीक है. अच्छा. हाँ. तो सॉरी, व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स? Sir, metals with high melting point. पक्का? और कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं चाहिए? नहीं sir. गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं चाहिए? नहीं sir. हाँ sir. कह रहा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं चाहिए, मतलब मेटल ऐसा ले लिया हमने जैसे कुकर बना दिया उसका, कि वो हीट खुद ही ऑब्जॉर्व कर ले, कंडक्ट ना करे, अंदर की कच्ची कच्ची रह जाए. लेकिन 3-4 सीटी बज गई, हम शौर्य को कच्ची सब्जी खाने के लिए दे देंगे. ठीक है. चलिए जी. अच्छा. तृप्ति, क्वेश्चन. विच आर द मेटल्स विच कैन बी कट बाय नाइफ? नाइफ को हिंदी में क्या कहते हैं? किसको? नाइफ को चक्कू. हम सब चक्कू कहते हैं. छुरी. चक्कू नहीं होता है, चाकू होता है. लेकिन हम सब चक्कू बोलते हैं. हम भी, मैं भी. चाकू. छुरी. इट कैन बी कट बाय अ नाइफ. चलो वर्णिका, विच आर द मेटल्स विच कैन बी कट बाय अ नाइफ? अरे तुम इस क्लास की सीनियर सिटीजन हो, जब ये कोई नहीं आंसर कर पाएगा तो तुमसे पूछा जाएगा.
तो मुझे लाइक मैंने कल ही पढ़ा था वो Oh wow. अभी। कल क्यों पढ़ा था? परसों थी हमारी क्लास तो। तो मैंने कल भी पढ़ा था कल भी पढ़ा थोड़ा था, रिवाइज बताई कर दो फिर तो। लिया। 2 बार पढ़ लिया। ये पता है क्या है ये हार्ड डिस्क है लैपटॉप। मदरबोर्ड पूरे साइज कंप्यूटर साइज का ही होता सर आ गया। है। हाँ, बताना। सर alkaline metals like potassium lithium नाइस। yeah बेकार आंसर बिल्कुल भी। मैंने क्या पूछा था? व्हाट वाज माय क्वेश्चन वर्णिका, कैन यू प्लीज टेल मी दैट? metals which can be cut by a knife. हाँ, डिड आई आस्क द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल व्हिच कैन बी कट बाय अ नाइफ? नो आई डिडंट। आई एम आस्किंग Oh, व्हिच मेटल्स कैन बी कट बाय अ नाइफ। श्योर है बताना? सर सॉफ्ट मेटल्स। सत्यानाश। मैंने क्या पूछा? व्हिच मेटल्स? सर सोडियम पोटेशियम। ठीक है, मैंने पूछा आप चारों में से हु इज इंटरेस्टेड इन कमिंग फॉर अ पार्टी विद मी? तो शौर्य कहता है बॉयज। मैंने कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछा, मैंने कहा हु इज इंटरेस्टेड इन, नाम बताओ उसका। ठीक है। मी। अलवी। सर बट मैंने पोटेशियम लिथियम बोला था फिर। अब बोला था, मन में बोला है। नहीं मैंने बोला था उसके बाद। रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हम सुन लेंगे दोबारा। हाँ, अलवी विच मेटल्स कैन बी कट बाय अ नाइफ? Sodium, potassium. अच्छा, fill in the blank, anybody, fastest finger first. Mercury is dash at room temperature. And liquid state at लिक्विड। लिक्विड। At room temperature. ठीक है। अच्छा बस भाई। एक ही और पूछिए सर, मजा आया। हाँ, सोच तो रहा हूँ, क्वेश्चन भी तो सोचने दो। सामने बुक नहीं है तो ऐसा कम्युनिकेशन क्या करोगे? ट्रू और फॉल्स? क्या? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फॉल्स। सत्यानाश। True. आंसर इज ट्रू। मेरे सत्यानाश करने के बाद तो बताई दो कि पहले की नहीं बोली हो। नहीं मैं तो सोच रही थी आपने जनरली बोला उसके बाद मैं बोली हूँ। मैंने तो अनदर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ऑल नहीं, सम नॉन मेटल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। True. ट्रू। सही है। एक और ट्रू फॉल्स। नन ऑफ द नॉन मेटल इज, पहले क्या बोला था? इससे पहले क्या बोला था ना? लिक्विड वाला पूछ रहा था। माय बैड, मजा नहीं आया। क्वेश्चन चेंज। अरे ट्रू फॉल्स। सम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स आर गैस एट रूम टेम्परेचर। ट्रू ट्रू। ट्रू। ठीक। फॉल्स। ठीक है, एक और नन ऑफ द नॉन मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फॉल्स। फॉल्स। क्या अटक रही है? फॉल्स। अरे मैं सोच रही हूँ भाई, रुको रुको। समझ नहीं आ रहा कि फिर से। गैस में तो होता है। चलो तृप्ति, क्वेश्चन है विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? हाँ हाँ। Which metal is नॉन मेटल सुनती नहीं हो? which non-metal is liquid in room temperature? एट इन रूम टेम्परेचर नहीं होता है, एट रूम टेम्परेचर होता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो टाइम अप। वर्णिका, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सर ब्रोमाइन। ब्रोमाइन भी होता है, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन। ठीक है, बैठे बैठे हो गई। क्लास में मत करा करो, इसके लिए अलग से स्थान होता है। क्लास एक तरह का मंदिर होता है, मंदिर में ही कर देते हो। थोड़ा धीरे हंसले भाई। अभी थोड़ा धीरे हंस ले भाई। हमारा ब्रो, I know मेरे दोस्त मुझे ब्रो बुलाते हैं. That doesn't make me a bro. Okay, sis. नहीं नहीं, दोस्त. अच्छा, क्वेश्चन अलवी नहीं बताएगी। इज एनी नॉन मेटल लस्ट्रस? non-metal lustrous कैसे हो सकता है सर? इसका आंसर तो नो है। तृप्ति का, वर्णिका का क्या है? इज एनी नॉन मेटल लस्ट्रस? सर डायमंड। डायमंड? ये भगवान। सॉरी, यस सर। कौन सा? सर ये तो नहीं पता। अरे नो, आपने तृप्ति का नहीं लिया,
वर्णिका का डायमंड नहीं लिया तो मैं नो बोल देता हूँ। हाँ बताओ अलवी। Iodine and diamond. आयोडीन इज द राइट आंसर। डायमंड भी कह सकते हैं लेकिन डायमंड इज नॉट अ नॉन मेटल, इट इज अ सब्सटेंस। So नॉन मेटल इज कार्बन, डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। it is an allotrope of carbon. So इट इज हाँ, कार्बन is- तो नॉन मेटल ही तो होता है। एलोट्रोप की बात करोगे तो फिर डायमंड एंड ग्रेफाइट लोगे। अच्छा, चलो क्वेश्चन देन, एनीबॉडी कैन आंसर। विच नॉन मेटल इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट। आंसर इज ग्रेफाइट। तुम सब चुल्लू में पानी में डूब मरो अलवी को छोड़ के। ठीक है, चुल्लू तो तुम्हारे पास है, इसे चुल्लू कहते हैं, पानी में दे देता हूँ। मेरे हाथ में ना। लाओ चुल्लू दो, मैं पानी में दूँ। लाओ, चिल्लू डूब चुका है सर, डूब गया है हाथ। पानी गिर गया। नहीं नहीं, पानी नहीं गिरा है। मैं ले जाए पानी भी नहीं है ऐसे हंस सकती। ओके जी, आगे चलते हैं। और ड्रॉप भी नहीं है। रिवाइज नहीं करना चाहिए, रिवाइज करके आओगे तो बहुत ही बुरा हो जाएगा आपके साथ। चलिए पढ़ते हैं। अच्छा नहीं, अभी तक का झक मार रहे थे हम। नहीं। क्वेश्चन तृप्ति, 2 मिनट बार बार उठना बैठना तुम बार बार मत उठो बेटा, डिस्ट्रैक्शन होता है, खड़ी रहो पीछे। व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोपी? एलोट्रोपी अर्निका, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोपी? फटाफट पढ़ने की कोशिश कर रही है। तो याद नहीं। शौर्य, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोपी? शौर्य की स्माइल करी है, उससे शायद याद है। नहीं सर। तो बताओ व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोपी? क्या नहीं है सुनो। नहीं याद है? सर सोच रहा हूँ। 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4। सर एक से ज्यादा फॉर्म जब फिजिकल स्टेट में वो होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। कर लिया? केमिकल्स के नहीं सर, देख लो। एग्जाम में हिंदी में लिख के आएगा, तुम्हारे स्कूल में अलाउड है? यस सर। शाबाश, मतलब तुम भाड़ में जाओ। अलवी तुम बताओ व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोपी? एलोट्रोपी मतलब कि हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है कि एक मटेरियल के और दूसरे फॉर्म्स हैं, जैसे कि कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप्स, जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट। मैंने लिखवाया नहीं था क्या? लिखवाया था लेकिन मैंने चीटिंग नहीं किया। ये भी हिंदी में लिखा है ना तुम भी, ठीक है? तब इंग्लिश से कन्वर्ट कर मैंने लिखवाया होगा समथिंग लाइक दिस, एलोट्रोपी इज। लिख के बता रही, लेट मी स्पीक। हाँ, substances which have two or more different physical forms but have same physical and chemical properties is called an allotrope, and this property is called allotrope. हाँ, हम्म, चलिए जी। ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं यही पढ़ लेते, थोड़ा काम आ जाते हैं। ठीक है, आज हमें कहाँ से पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से कौन पढ़ेगा? मैं। पढ़ो। 3.2 chemical properties of metals. We will learn धीरे about धीरे आराम से, ये कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं है। We will learn about the chemical properties of metals in the following sections 3.2.1 to 3.2.4. For this, collect the samples of following metals: aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc, and sodium. 3.2.1. What happens when metals are burnt in air? You have seen in activity 3.8 that magnesium burns in air with a dazzling white flame. Do all metals react in the same manner? Let us check by performing the following activity. Activity 3.9. Caution. The following activity needs the teacher's assistance. It would be better if students wear eye protection. Hold any of the samples taken above with a pair of tongs and try burning over a flame. Repeat with the other metal samples. Collect the product if formed. Let the products and the metal surface cool down. Which metals burn easily? What flame color did you observe when the metal burned? How does the metal surface appear after burning? Arrange the metals in the decreasing order of their reactivity towards oxygen.
Are the products soluble in water? Almost all metals combine with oxygen to form metal oxide. ये एक तरह से अंडरलाइन कर लो या पिन पॉइंट कर लो, ये याद करने वाली चीज है। सर हमने ऊपर का डिस्कस नहीं किया कि प्लेन कौन से कलर। हाँ, होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। कौन कौन से लिए थे हमने, मैं तो भूल ही गया। क्या था? कॉपर लिया, Magnesium, zinc, sodium, आयरन, iron, lead. ठीक है, कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड। होल्ड, ट्राई बर्निंग आउट ओवर अ फ्लेम। क्या लगता है, आयरन बर्न हो जाएगा? नहीं, कॉपर, हाँ, एल्युमिनियम, हाँ, लेड, मैग्नीशियम, यस, यस, जिंक, नहीं, सोडियम, हाँ, यस, सोडियम रिएक्ट्स वेरी फास्ट विद एयर। ठीक है, लेट द प्रोडक्ट्स एंड मेटल सरफेस कूल डाउन। विच मेटल्स बर्न इजीली? व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व? अच्छा, जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, विच कलर फ्लेम? व्हाइट। वाइट डेजलिंग लाइट कहते हैं ना, ये हमने 9 में पढ़ा शायद। क्या है मेरे को ये तो बता। वो चलाया है, चपली टाइप का। अरे पेंसिल पेंसिल चलाई है दिवाली पे। पेंसिल, अरे वो एक फूलझड़ी होती है, एक पेंसिल होती है। पेंसिल याद है? नहीं, पेंसिल याद है। इस जनरे फुलझड़ी इज नॉट डेजलिंग। डेजलिंग इज चक्री की जो होती है, चक्री जो होती है, हाँ, और पेंसिल भी होती है उसी तरह की, स्ट्रेट करके आती है। हाँ। ओ जिससे मतलब कि ऊपर से ग्लिटरी होती है। हाँ, ग्लिटरी ग्लिटरी सी, लाइट ग्लिटरी होती है उसकी। चमक रही होती है वाइट कलर की, एकदम से कलरफुल सी हो जाती है। हाँ, ठीक है। ये सपोज ये है, इधर से मैं कलरफुल। हाँ, वो बाद में दिवाली आने वाली है, सब समझा देना उसे, अपने घर पे बुलाना। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। इज दिस ओके? सब फ्लेम का कलर नहीं डिस्कस किया। अरे फिर छूट गया। वाइट है। Which flame color did you observe when the metal burned? जैसे मैग्नीशियम के केस में व्हाइट। एल्यूमिनियम कौन से कलर का आएगा? इट इज बर्न ही नहीं होता। क्यों, कोई फ्लेम? एल्युमिनियम थोड़ी बर्न होता है। अच्छा वो तो सॉल्ट जब हीट होती है तब वो कलर निकलती है। How does the metal surface appear after burning? ब्लैक। आयरन का ब्लैक, कॉपर का ब्लैक, एल्युमिनियम का ब्लैक। मैग्नीशियम तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, मैग्नीशियम तो पाउडर राख टाइप हो हो जाता है। हाँ, राख हो जाता है। अरेंज द मेटल इन डिसेंडिंग ऑर्डर देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये हम एक्चुअली नहीं कर सकते इतना आसानी से, बट या ऐड द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। वो जो ऐसी एक्टिविटी क्यों देता जो कि हम कर नहीं सकते? बस ऐसे अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे, केमिस्ट्री लैब में भी नहीं कर सकते। रिएक्टिविटी कहाँ ऑब्जर्व हो पाती है? ठीक है, हाँ, मैग्नीशियम के केस आप देखो, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम को कंपेयर नहीं कर पाओगे रिएक्टिविटी में, लेकिन मैग्नीशियम को कह दोगे हाईली रिएक्टिव, क्योंकि मैग्नीशियम तो बर्न हो गया। ठीक है, और एक और बर्न बताया था मैंने मैग्नीशियम के अलावा, सोडियम। सोडियम भी बर्न हो गया, वो भी आपको दिख जाएगा रीजनेबली। ठीक है, लेकिन आयरन क्या हो रहा होगा? गर्म हो रहा होगा। आयरन तो आप ऐसे समझ लो, आपके घर का कोई भी यूटेंसिल, जैसे वो होता है जिससे काला पड़ जाता जलते जिससे आप पराठे को पलटते हो तवे पे, क्या बोलते हैं उसे? चमीटा, चिमटा, नहीं, वो लंबा चिमटा सा, डिफरेंट। लंबा सा जो चाक, स्पैचुला, बड़ी सी स्पून होती है ना, स्पैचुला टाइप। झारा, झारा। नहीं, हमारे ओर से मतलब मैं भूल गया क्या कहते अरे हैं। उसमें छेद छेद होता है ना। छेद छेद वाला भी होता है, बगैर छेद छेद वाला भी। फ्राई करने के लिए होता है ताकि तेल हाँ। सारा नीचे उतर जाए। हाँ, एक जिससे पराठे को पलटते हैं। अरे वो जो लंबा सा होता है वानिला से हाँ। पूछो ना। ऐसे टाइप का। गंडिका बताओ ना। अरे शौर्य को भी पता होगा। शौर्य लड़का है, उससे क्या शौर्य पता तो होगा? बावर्ची है, हाँ, इसको पता होगा। नहीं, शौर्य लड़का है, उससे क्या पता होगा? सर को कैसे इसका पता है? नेट चला गया। सर को कैसे? मैं नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आ कर रहा है याद नाम मुझे। इससे तो हो गया। ठीक है, चिमटा वो होता है जिससे रोटी को, वो पलटते हैं टॉन्स हाँ, हाँ, पराठे के लिए उसे भी शायद चिमटा ही कहते इतना हैं। डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो बेचारे। हमारे तो साड़ी कहते हैं। हाँ, वही 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 जो भी तुम्हारे यहाँ कहते हैं। सर्च कर लो सर। एनीवेज, आगे चलते हैं। कॉपर हीटेड इन एयर क्या होता है? कंबाइंड विद, पढ़ो। For example, when copper is heated, चिल्लाती क्यों हो? मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन और पिच बहुत अच्छी है। इतना अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ। For example, when copper is heated in air, it combines with oxygen to form copper 2 oxide, a black oxide. Similarly, aluminium forms aluminium oxide. Recall from chapter 2 how copper oxide reacts with hydrochloric acid.
We have learned that metal oxides are basic in nature, but some metal oxides, such as aluminium oxide, zinc oxide, show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxides, which react with both acids as well as bases to produce salts and water, are known as amphoteric oxides. अंडरलाइन कर लो, अगली क्लास में अगर एम्फोटेरिक याद करके नहीं आए, शौर्य तुम्हें होमवर्क डालना है, मैं यार व्हाट्सएप ऑन कर ली तो मैं ही डाल दिया. Aluminium oxide reacts in the following manner with acids and bases. Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. Sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis as follows. Can we have a glance at the given equations? रुक जाओ. अच्छा, ठीक है, जरा ये जो जितना इसने पढ़ा है ना रॉकेट की स्पीड से, ये सब लोग ध्यान से पढ़ लो, धीरे धीरे समझ लो जरा. हाँ तो पढ़ लिया तुमने? next 42 से वही start करना. अभी रुक जाओ, सब लोग जरा पढ़ लो, रिवाइज कर लो. तुम्हारे लिए नहीं है ना, हम आम इंसान है ना, हमारे लिए है. सोडियम एल्यूमिनेट बना है, पिछले चैप्टर में सोडियम जिंकेट बना था, तो ये जो साथ में लगता है तो हम देखते कैसे कि किसके पीछे कितना जो बेस पे सबस्क्रिप्ट पे नंबर आता है वो कितना लगता है, बैलेंस से पता चलता है. तो वो हम करते कैसे, मतलब कि ये कोई मैंने रट के मैंने आपको 2 करोड़ का फ्लैट और 1 करोड़ का फ्लैट और 5 करोड़ का फ्लैट नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था, लेकिन ये तो तीन चीजें कंबाइन हो रही है ना. सब खेल उसी का है. तो आप तो टीचर, आपको तो आता, हमें तो सिखाया तो था. तो जो 1 करोड़ का फ्लैट और 5 करोड़ का फ्लैट नहीं पढ़ाया था? आप बैंगलोर में जॉब करने गए. मैंने आपने मेरा एग्जाम ऑक्टेट सिस्टम नहीं समझाया था? ऑक्टेट वो तो ऑक्टेट था, इसमें कैसे करेंगे. अरे सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया तो था, तुम्हारी आंखें कह रही है तुम्हें पता ही नहीं है. ये इसमें तो मेरे को समझ में नहीं आया. इसको छोड़ दो, जो समझाया था वो बता दो. वो समझाया मेरे को भी याद है. मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारी आंखें कह रही है, तुम्हें याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ पढ़ाया गया है. मुझे याद थी. अगर लिख लो पीओसी पढ़ाते हैं, आप मुझे याद दिलाना अगली क्लास में पीओसी पढ़ाओ. पीओसी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. आपके घर में ब्रायो फिल्म है क्या? क्या होता है? ब्रायो फाइल I don't know. आना फाइल लोगी क्या मांगी पड़ी. नहीं पढ़ लिया? शौर्य समझ में आ गया? तृप्ति समझ में आ गया? तो पढ़ रही हूँ. भाई जल्दी से पढ़ ले. भाई मैं पढ़ चुकी हूँ, मेरी बुक की खूबसूरत शक्ल देख ले. अच्छा तो हमने तो नहीं पढ़ा ना, तो शांत रह. मेरे एग्जाम में आ रहा था, उसके चक्कर में पढ़ा था. एंड आई जनरली फाउंड इट इंटरेस्टिंग, बल्कि मेरा क्वेश्चन से दूर अरे दूर पे आता अरे नहीं. हमें तो पढ़ने तो दो. पढ़ना. डोंट चुप होगी तब तो पढ़ेगी. सर आना नहीं बोला, मैं बोल रही थी, मुझे बोलने तो अपना फोकस नहीं मेंटेन. ऐसे नहीं होता है फोकस मेंटेन. हमें अपना फोकस करना है. अगली बार जब तुम पढ़ रही होगी ना, मैं तुम्हारे सिर पे पानी डालूंगा और मैं कहूंगा फोकस मेंटेन रखो. मैंने पानी तो नहीं डाला, नहीं, फोकस मेंटेन रखने की बात हो रही है. साउंड के साथ हो रही है साउंड. हाँ अब आगे चल सकते हैं. एक मिनट रुक जाओ. सरप्राइज टेस्ट नहीं अभी ना सेलेक्ट तो वही करते होते हैं चैप्टर के पेटल्स और नॉन. अभी कैसे सरप्राइज टेस्ट ले सकता है सर? अभी तो हमने बोल रहे हैं कुछ कैसे ले सकते हैं, कैसे करो, पूछो मत. सर ले सकते हैं. कैसे करते हैं?
Megabytes. नहीं Megabyte, में लिखा भी नहीं है ना कुछ, मैं वही बोल रही हूँ। पता नहीं मैंने क्या दबा दिया। Sorry, sir. हटेगा कैसे ये अब? कि आप ऊपर आते हो कि बाहर? That's अरे वो तो बाद में चेक कर लेंगे, तो पॉइंटर्स डाल रहा हूँ। हाँ जी, चले शौर्य आगे बढ़ो। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate. Different metals show different reactivity towards oxygen. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open. Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. At ordinary temperature, the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevents the metal for further oxidization. Iron do not burn or on heating, but iron filling burn vigorously when sprinkled in the flame or the burner. Copper do not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper to oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperatures. Anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminium. Aluminium develops a thin oxide layer when exposed to air. This aluminium oxide coat makes it resistant to further corrosion. The resistance can be improved further by making the oxidized layer thicker. During anodizing, a clean aluminium article is made the anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid. The oxygen gas evolved at the anode reacts with aluminium to make a thicker protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminium articles an attractive finish. After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metal taken here. The reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium. But burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper, or lead. Let us see some more reactions to arrive at a conclusion about the order of reactivity of these metals. समझ में आया शौर्य? बस पढ़ते जा रहे थे। सर पढ़ रहा था बस। जरा पढ़ के दोबारा समझ लो मन मन में अब। अगली क्लास में जितना पढ़ाया है पिछली दो क्लासेस में, मतलब ये डे बिफोर यस्टरडे एंड टुडे, उतने का टेस्ट है। लेकिन मतलब कि जो रेजिस्टेंस है तो मतलब कि अगर थिक लेयर होगी तो कैसे होगा, लेकिन ऊपर की लेयर खराब हो गई फिर अंदर वाली न्यू लेयर ऐसे। तो आप बोल रहे थे कि केमिस्ट्री लैब में ऐसे डिफाइन करना है। अब जैसे तुम्हें पता है, तुम्हारी मम्मी गोल्ड का कुछ पहनती है? हाँ, तुम्हारी मम्मी गोल्ड का कुछ पहनती है? पहनती। पहनती थी। तो वो रस्ट करता है, यानी कि गोल्ड इज नॉट रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी सीरीज से फॉर्म कैसे अच्छा अब देखो सुनो, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, मैंने गोल्ड का पहन रखा है,
सिल्वर का भी मैंने रखा है, सिल्वर के कॉर्नर्स ब्लैक हो रहे हैं, देख रहे हो, यानी कि सिल्वर एज कम्पेयर टू गोल्ड थोड़ा रिएक्टिव है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ ब्लैक हो जाता है। ये 10 साल बाद जैसे रिएक्ट करते ये मेरी चेन है, सिल्वर की है, लेकिन काफी ब्लैकिश लग रही है, तो मैं इसे हर 2-3 साल, अभी भी सिल्वर जैसी लग रही है लेकिन नहीं भी लग रही है। प्योर सिल्वर तो ऐसे होता है ना, चमका चमका सा, है ना। ये मैं हर 2-3 साल में फिर गोल्ड स्मिथ के बाद, ज्वेलर के बाद जाता हूँ, उसको कहता हूँ वो करना, चमका दे। कुछ एसिड वगैरह डालो। हैं। एक्वारीजिया में ऐसे एक्वारीजिया से नहीं करवाना चाहिए साफ, वो वो पता नहीं वॉल्यूम कम हो जाता है। हाँ, तो वो नॉर्मली एक साफ करने का ना, मैट सिल्वर को साफ करने का एक वो आता है, पाउडर टाइप का। गोल्ड को साफ करने के लिए एक्वारीजिया यूज करते हैं, लेकिन गोल्ड कम हो जाएगा आपका। 10 ग्राम था, 9.9 बचा, 0.1 ग्राम ले गया वो। 0.1 ग्राम ही पता है कितने का आज की तारीख में? 1 लाख 0.1 ग्राम है, 10,000। फिर बताने दो ना यार, 1 ग्राम है करीब 12,000 रुपये का, तो 0.1 ग्राम हो गया 1,200 रुपये। और 10 ग्राम की रिंग ना यूजुअली कोई नहीं पहनता डेली यूज में, 10 ग्राम की रिंग रीजनेबली भारी होती है। जैसे ये है, मुझे सही सही याद नहीं, बट प्रोबेबली 5 ग्राम की है, तो 0.1 भी कम हो गया, तो 5 ग्राम की रिंग में से 1,200 रुपये का तो आपका गोल्ड गया। हाँ बल्कि मतलब कि जो लोग आते हैं ना कि हम आपका गोल्ड साफ कर देंगे, मतलब कि करवाना नहीं चाहिए, हाँ तो फ्रॉड वो होते जैसे हैं वो। एक्वारीजल आता है उसे भिगो के साफ कर देते सबको, और फिर बाद में जाके उसमें गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आपने 100 ग्राम गोल्ड साफ करवाया है ना, मैं पक्का बता रहा हूँ, पक्का एटलीस्ट 1 ग्राम ले गया, और 1 ग्राम आज की तारीख में 12,000 रुपये का है। सोचो, आपका 12,000 रुपये का लॉस। मतलब कि इनडायरेक्टली स्मगलिंग इनडायरेक्टली स्मगलिंग नहीं है, वो डायरेक्टली चोरी है। स्मगलिंग होता है विदाउट, इलीगल कुछ करना। हाँ मतलब स्मगलिंग इज विदाउट नोइंग द अथॉरिटीज। हम अथॉरिटी नहीं है, हमारे घर पे आके वो चोरी करके जा रहा है, वो भी आंखों के सामने। अच्छा, और हमको चोरी पता ही नहीं चलता। एक चीज होती है, चोरी एक चीज होती है, डकैती एक चीज होती है, ठगी। डू यू नो द डिफरेंस? चोरी होती है मतलब कि आए और सामने से चोरी करके चले गए। ठगी हो गया जैसे नहीं, मतलब नहीं। कि चूना लगा के कि बोला कुछ करा ठगी सही बोल रहे हो। चोरी देखो, सपोज तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारे पर्स से 100 का नोट बाहर निकल रहा है, बैक पॉकेट से, उसने तो चुपचाप खींच लिया, मिल भी जाएगा। उसने चुपचाप खींच लिया, वो चोरी है। डकैती क्या है? उसने तुम्हें रोका, फिर थप्पड़ पर मारा, या गन पॉइंट पे लिया, हम और की तुम्हारे से पैसे जबरदस्ती लिए, तुम्हें पता है कि तुम दे रहे हो, दैट इज डकैती। पर तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारा हाथ ठीक है, होता है। ठगी इज आपको चूना चूना लगा दिया, बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना दिया, ठीक है, दैट इज ठगी। राइट। हाँ, पढ़ लिया भाई, हम्म, कहाँ थे हम? what happened when metal reacts with water? पहले व्हाट हैपेंस विद मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर, कोई बताएगा? दे में करोड़ करोड़ कोरोड। में ओह, आपको वॉलपेपर अच्छा है, मैंने फर्स्ट टाइम मेरा वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं था मैंने जब भी आई थी। अच्छा जी, ये मैंने पढ़ा दिया, ये पढ़ लिया, आगे चलते हैं। पढ़ने का आगे पढ़ो। फिर एक्टिविटी से कहाँ से पढ़ रहे थे? अभी आफ्टर मैंने अभी जो नहीं, what house से मूवी पढ़ लिया। व्हाट हैपन से पढ़ना है। activity 3.1 collect the samples of the same metals as in activity 3.9. Put small pieces of the samples separately in beakers half filled with cold water. Which metals reacted with cold water? Arrange them in the increasing order of their reactivity with cold water. Did जाओ, any metal produce fire on water? रुक जाओ, Does सुन नहीं रही है, रुक जाओ। अब मैं समझा रहा था रिएक्टिविटी सीरीज। तो जैसे हमें पता लिया, गोल्ड सिल्वर ना काफी कम रिएक्टिव होते हैं विद ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा,